Hello guys, I'm Tamanna Jakhar and today onwards we will also discuss biological topics on our channel for different upcoming competitive exams like CSIR NET, NEET or HTET or DSSB, various exams like this. We will start with genetics and the basic concept or basic topic in genetics is multiple allelism. First of all, we will understand what is multiple allelism. हम सबको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं कि जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं दैट इज कोडेड बाय क्रोमोसोम्स. दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. Okay, so what is gene? Gene are the specific part of chromosome which determines the hereditary characters. पूरा क्रोमोसोम एक कोई हेरिडिटरी कैरेक्टर को तो डिफाइन करेगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वी हैव 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम कितने सारे कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट स्मॉलर और बिगर पार्ट्स ऑन द क्रोमोसोम दैट कोड फॉर अ hereditary character. This is called gene. This is what we call it gene. Okay, next is what is allele and what is difference between gene and the allele. तो एलील क्या होता है? एलील इज द पार्ट और द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन. दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम. सेम पोजीशन और हम इसको कह सकते हैं सेम लोकाई. जीन लोकाई. लोकाई और अल्टरनेट वर्ड फॉर लोकाई इज लोकेशन. अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल ये हमारे क्रोमोसोम का सेंटर है, तो अगर हम देखते हैं दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स. ये एक कैरेक्टर के लिए है, ये दूसरे कैरेक्टर्स के लिए है. तो ये सेम पोजीशंस पे क्या मतलब होता है? मान लेते हैं ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो ये भी यहाँ से x डिस्टेंस पे ही होगा. ठीक है, then comes to the homozygous or heterozygous position or homozygous dominant or homozygous recessive position. Homozygous dominant condition क्या होती है? Homozygous dominant condition is when जो एलील्स हैं, डोमिनेंट मीन्स एज वी ऑल नो डोमिनेंट मीन्स जो हमेशा एक्सप्रेस करता है अपने आप को. तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में क्या होगा? एलील पेयर के बोथ फॉर्म्स विल बी इन डोमिनेंट फॉर्म मीन्स कैपिटल बी और कैपिटल बी. homozygous recessive means both are of small, these like this, and heterozygous will be like this. ठीक है, नाउ ये हमने देख लिया कि हर जगह पे दो ही पेयर है. दिस इज कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी और स्मॉल डी और कैपिटल ए, स्मॉल ए. बट हम क्या कह रहे हैं? मल्टीपल एलेलिज्म. तो मल्टीपल एलेलिज्म और बाई एलेलिक कंडीशन में क्या फर्क होता है? जब एक सिंगल जीन के लिए दो फॉर्म्स ऑफ alleles, two forms of alleles are present in a population is called biallelic condition. Or when three or more alleles of a gene are present in a population or codes for a single character, this condition is called multiple allelism. So अब हमें फर्क समझ में आ गया बाई एलेलिक कंडीशन और मल्टीपल एलेलिक कंडीशन. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलीजीन में और मल्टीपल एलेलिज्म में. पॉलीजीन की कंडीशन क्या होती है? जब मेनी जीन्स, 3 और मोर देन 3 जीन्स control the inheritance of a qualitative characters. For example, skin color. अगर हम बात करें स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस, then A, B, C, these are the 3 genes that code for the skin color of human beings. This condition is called polygene. And multiple allelism is the condition when two or more alleles for a single characters. Alleles are the part of gene, and polygene condition is many genes that control the inheritance of a quantitative character. So
जो मल्टीपल एलेलिज्म है इज अ एक्सेप्शन टू द मेंडल्स वर्क। मेंडल वर्क का क्या था कि जो पी प्लांट पे उन्होंने काम किया था, देवर बाई एलेलिक। जो भी उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे देवर बाई एलेलिक, चाहे वो प्लांट की हाइट का कैरेक्टर था या कलर का कैरेक्टर था, कलर ऑफ पोड और एनी अदर, they were occurring in only two forms, that is dominant or recessive form. These were in the biallelic condition. Now there is an exception, that is multiple allelism. What are the characters of multiple alleles? Multiple alleles always occupy the same locus on the chromosome, as we have told you, that is these two characters or these two alleles will always occupy the same location, that they will be at the same distance from the chromosome center, because all the alleles of multiple series occupy the same locus in chromosome, therefore no crossing over occur within the alleles of same various allele series. इसका क्या मतलब है, ये जब हम देखते हैं, ये जब हम देखते हैं ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं, ये दोनों एलील सेम पोजीशन पे हैं, तो इनके आपस में क्रॉसिंग ओवर की पोजीशन है, इनके आपस में क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम्स की हो सकती है, बट इन दोनों के आपस में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है. This is the second character of multiple alleles, that is no alleles in the multiple allelism can have crossing over in between them. मल्टीपल एलील्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस द सेम कैरेक्टर्स. ऐसा नहीं होगा कि जो मल्टीपल एलील्स हैं, दो हैं, चार हैं, अगर चार एलील्स है किसी जीन के लिए, तो ये नहीं होगा कि दो एलील्स उसके किसी और कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं और बाकी के दो एलील्स किसी और कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं. मींस ये क्या सिचुएशन होगी, व्हेन both the alleles or both means multiple alleles, 3 or 4 alleles will code for the single character. The wild type allele is nearly always dominant, while the other mutant allele in the series may show dominant and maybe intermediate phenotype. इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल एलेलिज्म एक तो अराइज कैसे होता है, इससे पहले हम जो इसके नीचे वाला कैरेक्टर है वो हम रीड करते हैं, वो हम समझते हैं, उसके बाद आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. मल्टीपल एलील इज अ पॉपुलेशन ट्रेट, but in individual diploid organism only two homologous alleles of a single gene will occur. इसका क्या मतलब है कि अगर हम बात करें हाइट की, हाइट ऑफ द पी प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बाय टीटी, तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में एक जीन की दो ही फॉर्म्स अवेलेबल होंगी, बट मल्टीपल टाइम्स की क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, डिफरेंट म्यूटेशंस की वजह से एक जीन की मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती हैं, मल्टीपल एलील्स फॉर्म होते हैं, दैट विल लीड टू द that is just because of the mutation. ये आपका क्वेश्चन बहुत बारी सीएसआईआर नेट में भी पूछा गया है और एचटेट में भी पूछा गया है कि मल्टीपल एलेलिज्म इज अ पॉपुलेशन ट्रेट, कि स्पीसीज में म्यूटेशन, एक एलील में म्यूटेशन होती रहेगी, मल्टीपल फॉर्म्स विल अराइज, व्हाइल बाई एलेलिक कंडीशन इज अ इंडिविजुअल ट्रेट. सो जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले एलील प्रेजेंट थे एक पॉपुलेशन में, दीज आर कॉल्ड वाइल्ड टाइप एलील्स, and the other after that is formed after mutation are called the mutant alleles. जो म्यूटेशन के बाद हमें मिलते हैं, these are called mutant allele. तो उस टाइम में जो वाइल्ड टाइप एलील होते हैं, they are always in 99% cases they are always dominant, while the mutant alleles may show dominance or intermediate phenotypic effect. अगर दोनों ही एलील्स किसी मान लेते हैं किसी जीन के लिए दोनों ही एलील्स वाइल्ड टाइप है, देन इट विल एक्सप्रेस द वाइल्ड फिनोटाइप.
In other situation, when one wild type is present and other mutant allele is present, in that situation wild type allele will express itself. और कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे दोनों ही म्यूटेंट एलील्स हैं, that will lead to presentation of intermediate phenotypic effect. So examples of multiple allelism are coat color of rabbits, wings of Drosophila, and blood group in human beings. We will discuss in detail one by one all of these. सबसे पहले एग्जाम्पल है कोट कलर इन रैबिट. There are different coat colors in rabbit. They are expressed by different alleles. एक सिंगल जीन है C that occurs in different multiple allelic forms and will code for the coat color in rabbit. That is, first is wild type, that is full color or agouti type, that is coded by capital C or C plus. Chinchilla, that is coded by C, CH. Himalayan is coded by CH, and albino is coded by C. So full color or agouti is wild type, so it will be capital C will be dominant of all. Then chinchilla, then Himalayan, and the albino will show respective dominant characters of themselves. So these are the dominant characteristic of C, CCH, CH and C. मान लेते हैं किसी केस में कैपिटल C प्रेजेंट है और C CH प्रेजेंट है, उस केस में कौन सा कलर हमारे फेनोटिपिक इफेक्ट होगा? दैट इज फुल कलर, क्योंकि वहां पे वाइल्ड टाइप है एंड वाइल्ड टाइप विल एक्सप्रेस इटसेल्फ. सो अगर हमें देखना है कि फुल कलर किस किस सिचुएशन में अराइज होगा, देन इट विल अराइज इन कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल स्मॉल c, CH, then capital C, CH, then capital C and small c. These are the coat colors that will code for, these are the alleles combination that will code for the full color or agouti in rabbit. Then we come for the chinchilla. Chinchilla में कौन कौन से alleles combination होंगे that will produce the chinchilla color? That is C, CH and C, CH when both are present in homozygous form. Another is C, CH and CH. Next is C, CH and small c. Then comes to the third situation is Himalayan type. Himalayan type के लिए कौन कौन से allele combination will express themselves? C, H and CH. That is both when both of them are present in homozygous form. Then CH and the small c. Then comes to the albino. Albino type का कोट कलर होने के लिए आपके लिए कौन कौन से एलेल कॉम्बिनेशन होंगे? दैट इज small c, small c. When small c is present in homozygous form, that is recessive allele will express themselves when they are present in homozygous form. So these combination are let's count this ki how many combinations are formed with these four type of alleles, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. These 10 genotypes are formed just by combination of these four alleles. So next example, we will now discuss the next example, that is ABO blood group in human beings. First of all, ABO blood group was discovered by Carl Landsteiner in early 1900s and the gene for the blood group is located on chromosome number 9. कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन HTET वगैरह में पूछ लिया जाता है कि ब्लड ग्रुप एक बेसिक सा हमारा ब्लड ग्रुप का एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड ग्रुप के लिए जो क्रोमोसोम नंबर क्या है, जो जीन है वो किस क्रोमोसोम नंबर पर प्रेजेंट है? दैट इज ऑन नंबर 9. ब्लड ग्रुप्स आल्सो शो कोडोमिनेंस. कैसे वो जब हम एग्जांपल करेंगे उस टाइम पे बताते हैं. दैट इज सॉरी, इट्स नॉट कोड डोमिनेंस, इट इज कोडोमिनेंस. We say that the blood group is just because of the presence of IA, IB
and I note. What is I in this? I stands for isoagglutinogens or antigens. Another term for antigens. A और B antigens क्या होते हैं? A और B antigens are the carbohydrate groups bound to the lipid molecules of fatty acid protruding from the membrane of red blood cells. Red blood cells जो हमारी blood cells होते हैं, उसमें जो red blood cells होते हैं, उनके surface पे कुछ lipid molecules होते हैं. उन lipid molecules पे जब हम देखते हैं तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, that are A and B antigens. This is our RBC and these are the lipid molecules and these are the carbohydrate moieties. ठीक है. These terminal sugars of carbohydrate provide the specificity of A and B antigens. ए और बी एंटीजेंस कैसे अटैच होते हैं? सबसे पहले जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उन पे एक एच प्रीकर्सर, एच सब्सटेंस का प्रीकर्सर प्रेजेंट होता है. उस एच सब्सटेंस के प्रीकर्सर पे एक एंजाइम कोड होता है FUT1 जीन से. This gene will code for an enzyme that is called fucosyl transferase, and this will convert H substance precursor to the H substance. This is the fully grown H substance. और इस H substance में जब IA एलील्स होते हैं ABO ब्लड ग्रुप के लिए, that is IA, IB and I naught. So इस H substance पे when IA will be present, IA allele will be present, it will code for an enzyme and this enzyme will add N-acetyl glucosamine. This here N-acetyl, this is called by the violet color and here it is the violet color. ठीक है, sorry, this N-acetyl glucosamine, these both are expressed by the violet color and the blue color. That is present in the basic chain also. This here it is also present N-acetyl glucosamine. When IA allele is present in a organism, that codes for an enzyme and this enzyme adds N-acetyl glucosamine to the terminal end of the carbohydrate. When IB antigens, IB allele is present, that will code for another enzymes. This enzyme will add galactose here, galactose, and here it is present. Galactose instead of N-acetyl glucosamine to the carbohydrate moiety and it will lead to the expression of B gene. When none of these, that is neither IA or neither IB allele is present or there अगर कोई एलील ही नहीं है वहां पे तो वहां पे कोई एंजाइम भी नहीं होगा और अगर वहां पे कोई एंजाइम नहीं होगा then this portion will be vacant. वहां पे कोई भी जो टर्मिनल शुगर के लिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो ऐड नहीं होगा एंड इन दिस केस it will lead to the O blood group. ये हमने देखा IA एंजाइम प्रेजेंट है तो वो N-acetyl glucosamine को ऐड करेगा एंड दैट विल लीड टू द A ब्लड ग्रुप. B है तो गैलेक्टोज को ऐड करेगा एंड दैट विल लीड टू द B ब्लड ग्रुप. और अगर यहाँ पे इन केस यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट है, दैट इज IA एंड IB बोथ कहीं मतलब एक एलेलिक फॉर्म में, अगर हम यहाँ पे बात करें क्रोमोसोम्स की, तो यहाँ पे अगर एक फॉर्म में IA प्रेजेंट है और दूसरी फॉर्म में IB प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, ये भी अपना एंजाइम फॉर्म करेगा, IB भी अपना एंजाइम फॉर्म करेगा. तो IA का एंजाइम यहाँ पे N-acetyl glucosamine को ऐड कर देगा और जो B का एंजाइम है वो वहां पे गैलेक्टोज को ऐड कर देगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ पे आके यहाँ पे जो ये है यहाँ पे
अगर हम डार्क में देखते हैं तो यहाँ पे एनेसिटाइल है, मान लेते हैं यहाँ पे एनेसिटाइल है, एनेसिटाइल, एनेसिटाइल, एनेसिटाइल। बट अगर यहाँ पे 4 पे एनेसिटाइल है, 4 लिपिड मॉलिक्यूल्स पे एनेसिटाइल है, तो यहाँ पे 2 जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे गैलेक्टोज भी तो है, मान लेते हैं ये रिप्रेजेंट करता है गैलेक्टोज को। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फाइनली जो आउटपुट होगा, जो हमें फिनोटिपिक मिलेगा, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। अब आप इस जो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ब्लड ग्रुप ऑल्सो शो कोडोमिनेंस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, कि जहाँ पे दोनों ही एलील्स अपने आप को रिप्रेजेंट करे, दोनों ही कैरेक्टर्स हमारे जो फिनोटाइप में है वो एक्सप्रेस्ड हों और हमें विजिबल हों। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस, एंड ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ए बी ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, जहां पे ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है एंड बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। सो यहाँ पे आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे आई, अगर आई ए का एलील है और एंजाइम है दैट इज एडेड हैज एडेड एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और बी है तो वहां पे गैलेक्टोज ऐड कर दिया। जब ए बी ब्लड ग्रुपिंग है वहां पे कुछ जगह पे एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन होगा और कुछ जगह पे गैलेक्टोज होगा। इस सिचुएशन में ब्लड ग्रुप विल बी ए बी, और जब ना यहाँ पे गैलेक्टोज होगा ना यहाँ पे एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन होगा, that will lead to the blood group O type। जो भी एंटीजन है, जो जिसको भी ये अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर रहे हैं आरबीसी, उनके अगेंस्ट जो भी मेजर है दैट इज डोमिनेंट फॉर्म है एलील की, उसके लिए जो भी एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, सॉरी एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वहां पे एंटीबॉडी होगी बी, अगर बी है तो वहां पे एंटीबॉडी होगी ए, और अगर ए बी दोनों ही है, दोनों ही मेजर हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं, कोई भी किसी से रेसेसिव नहीं है, इन दैट सिचुएशन दैट विल बी नाइदर ए विल एक्ट एज एंटीबॉडी नॉर बी इज द एंटीबॉडी। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। एंटीजन इन ब्लड रेड ब्लड सेल्स इज ए एंटीजन, बी एंटीजन और ए बी एंटीजन, और यहाँ पे कोई नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे बी है, हमारी जो एंटीबॉडी है वो बी है, तो ए किस किस से ब्लड ले सकता है, सिर्फ ए से, और इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अगर कोई एंटीजन नहीं है तो इनके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। सो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ए ब्लड ग्रुप वालों से और ओ ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो बी वाले हैं, जो ब्लड ग्रुप बी है, सिमिलरली दे कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप ए बी। ए पे यहाँ पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये ए वालों से भी, बी वालों से भी और ओ वालों से भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ओ वाले हर किसी को दे सकते हैं। सो दे आर द डोमिनेंट, सॉरी दे आर द यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल and AB blood group is universal acceptor। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज द यूनिवर्सल डोनर, हु इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब हमने देख लिया कि आई ए है और आई बी है, बट ये आई ए आई बी को अगर हम जीन लेवल पे देखते हैं दैट इज आई ए आई बी एंड आई नोट, तो ये अगर ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, जब आई ए और आई ए प्रेजेंट हो और आई ए और आई नोट प्रेजेंट हो, these two allele combination will code for the A blood group। B blood group के लिए कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, आई बी एंड आई बी आई नोट। O ब्लड ग्रुप के लिए कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, आई नोट एंड ए बी ब्लड ग्रुप के लिए कौन से जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, आई ए एंड आई बी। Here is another exception for the blood grouping system। क्या है कि एक 1950s में एक अनयूजुअल केस आया था जिसमें एक विमेन का ब्लड ग्रुप
उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा था। ये किस बेसिस पे हुआ था? जो पेरेंट्स थे उनका ब्लड ग्रुप था ए बी। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी था तो मोस्ट प्रोबेबली उनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए था? ए बी और ए बी। क्योंकि अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स को आई ए आई बी क्रॉसिंग करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? इन दोनों को अगर क्रॉस करके लिखते हैं हम, दैट इज आई ए आई ए आई ए आई बी, this is IA, IB, and this is IB, IB. So this will lead to the expression of AB blood group. This will lead to the expression of A blood group, and this will lead to expression of B blood group. So possible तो आउटकम यही होना चाहिए था उस लेडी का कि या तो उसका ब्लड ग्रुप A हो या AB हो या B हो, बट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री कॉम्बिनेशन उनका ब्लड ग्रुप फंक्शनली उनका ब्लड ग्रुप O था। उनका जेनेटिकली अगर हम देखते हैं तो उनका ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए था, बट उनका ब्लड ग्रुप जो एक्सप्रेशन था, जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन था, वाज ओ टाइप। ये किस वजह से था? क्योंकि उनका जो फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रोड्यूस करने का जीन था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो एच सब्सटेंस प्रीकर्सर को एच सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो जीन होता है, जो एक्सप्रेस करता है एंजाइम को एज फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज, उसमें होमोजाइगस म्यूटेशन थी। होमोजाइगस म्यूटेशन का मतलब कि उस एलील की दोनों फॉर्म्स थे वो डिफेक्टिव थे, या हम कह सकते हैं उसमें म्यूटेशन थी। इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, वहां पे फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हुआ। फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये एच सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर उनके पास आई बी था, जैसे उस केस में मेंशन है कि जीनोटाइप तो था वो आई बी का था, आई बी ने अपने आप को एक्सप्रेस भी किया, उसने अपना एंजाइम था वो प्रोड्यूस कर दिया, पर एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया, वो एंजाइम को अपने जो गैलेक्टोज ऐड करता है उसे कुछ प्रीकर्सर चाहिए। जब ये एच सब्सटेंस प्रीकर्सर से एच सब्सटेंस ही नहीं बना तो जो आई बी का एंजाइम था वो गैलेक्टोज किस पे ऐड करता? जब गैलेक्टोज ऐड नहीं हुआ ना, एनएसिटाइल के लिए वहां पे कोई एंजाइम नहीं था, और गैलेक्टोज का जो एंजाइम प्रेजेंट था वो उसको ऐड नहीं कर पाए गैलेक्टोज को। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? दिस लीड टू दिस सिचुएशन, that is neither galactose nor N-acetyl glucosamine was added, and this lead to the blood group O. So another, if we sum up these ABO inheritance, here it is, that is parent का एलील A है, दूसरे पेरेंट्स का भी एलील ए आता है, दैट इज आई ए सिचुएशन। इस टाइम पे फिनोटाइप होगा ए एंड द फिनोटाइप ऑफ द चाइल्ड विल बी ए ब्लड ग्रुप। इफ सिचुएशन ऑफ क्या आती है कि एक एलील है जो पेरेंट्स से मिला है, दैट इज आई ए, और अनदर एलील इज आई नोट, दैट लीड्स टू द जीनोटाइप AO and the phenotype will be A. Similarly, A B दोनों आते हैं, that will lead to the phenotypic AB blood group. BA वही आगे पीछे करके रिवर्स करके लिख देते हैं हम इसको, तो भी ये दोनों आपस में एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट विल लीड टू द AB ब्लड ग्रुप। BB दोनों सिचुएशंस में प्रेजेंट होगा, दैट विल लीड टू द B ब्लड ग्रुप। BO प्रेजेंट होगा, B डोमिनेंट है, O रेसेसिव है, O B अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड दैट विल लीड टू द B ब्लड ग्रुप। अगर कोई भी एलील्स डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, दैट इज बोथ आर रेसेसिव एलील्स आर प्रेजेंट, दैट विल लीड टू द O ब्लड ग्रुप एंड द रेसेसिव एक्सप्रेशन विल बी O ब्लड ग्रुप इन द फाइनल। सो इसके लिए कितने एलील्स हो गए ब्लड ग्रुप के लिए? IA, IB एंड I नोट। सो नंबर ऑफ एलील्स मल्टीपल एलेलिज्म के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द जीनोटाइप ऑफ एक्सप्रेशन मल्टीपल एलील्स। इसमें क्या होता है कि n इज द नंबर ऑफ एलील्स, यहाँ पे 3 है। सो अगर हम इसे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, 3 इज इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 into 4 by 2
if we cut it short, then it will lead to the 6. There will be 6 genotype. अब अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, sorry, these both are same, so this will be first, second, these both are same, this is 3 4 5 and this one is the 6th genotype. और अगर हम phenotype की बात करें तो phenotype will be 4, A, AB, B and O. अब हम देखते हैं जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था, दैट इज कोट कलर इन रैबिट. कोट कलर के लिए कितने एलील्स प्रेजेंट थे? 4 एलील्स. और हमने जब काउंट किए थे तो यहाँ पे कितने जीनोटाइप्स आए थे? 10. अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं. 4 into 4 plus 1 by 2 divided by 2, and if we cut it short, that it will be 2. 2 into 5, that is 10. 10 जीनोटाइप्स. और यहाँ पे हमने काउंट कितने किए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. फाइन. सो अगर हमसे डायरेक्ट, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि आपको किसी पॉपुलेशन का मल्टीपल एलील्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 और 6 और 7 फॉर अ ट्रिक क्वेश्चन. उस टाइम पे क्या होता है कि वो एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है. अगर हम उस पे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लगा के देखते हैं तो उससे एक बहुत लेंदी, और अगर हम इसे ऐसे भी पुनेट स्क्वेयर्स वगैरह में करते हैं तो उसमें भी मिनिमम हमारे 1 मिनट या 2 मिनट तो लग ही जाते हैं. अगर हम इन नंबर ऑफ एलील्स को डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करें और नंबर ऑफ जीनोटाइप फाइंड करने में हमें लेस देन 1 मिनट और नियर अबाउट 30 सेकेंड्स लगते हैं टू कैलकुलेट द टाइप ऑफ जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन फॉर अ ट्रेट. अगेन, जो मल्टीपल एलिलिज्म है इज अ पॉपुलेशन ट्रेट, नॉट एन इंडिविजुअल ट्रेट. सो दैट इज ऑल अबाउट मल्टीपल एलिलिज्म. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much. Keep smiling.